Good morning, students. Today we are going to discuss about a new topic. Topic name is that is conductivity, conductance, and molar conductivity. Before going to this topic, let us discuss about your previous knowledge. Previous knowledge means knowledge about redox reactions and other things. First of all, let me tell you what is the meaning of redox reactions. Redox reaction means the reactions in which both reduction and oxidation takes place. I had already discussed these things with you earlier. Now again I am going to discuss with people. Redox reactions in which both oxidation and reduction occurs, like this one. Zn goes to Zn2 positive, Cu2 positive goes to Cu. Okay, here what happens? Zn loses 2 electrons and it converts into Zn2 positive. Cu2 positive gains 2 electrons and gets converted into Cu. So oxidation of Zn takes place and reduction of this Cu2 positive takes place. Similarly, oxidizing and reducing agents, here zinc helps in reduction, so that's why it is reducing agent, while Cu2 positive helps in oxidation. It will act as an oxidizing agent. Okay, next about metallic and electrolytic conductance. We know that we have classified the things in three terms. One is called as conductor, second is called as insulator, and third one is that semiconductors. Okay, so conductors which allow the passage of electric current, insulators which do not allow the passage of electric current. Okay, here types of conductor, two types are there: metallic conductor or electronic conductors. Electronic conductors, as the current flows due to the movement of electrons, that's why they are also called as electronic conductors. Okay, so they allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical change. Here the current flowing through that conductor is due to the flow of electrons, that's why they are also called as electronic conductors. And examples, you know, that copper, silver, etc., these are the examples of metallic conductors. Then next one is electrolytic electrolytes or electrolytic conductors. So first of all, you should have the knowledge of electrolytes. What are electrolytes? Electrolytes means which dissociates into ions. Okay, and then these are the substances which allows the electricity to pass through them in their molten state or in the form of their aqueous solution. It undergoes chemical decomposition. Okay, केमिकल डिकम्पोजिशन यहाँ पर होगी, उसकी वजह से वो क्या होगा, वहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयंस वहाँ पर होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो करेगी. एग्जांपल्स एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, और इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ करंट होगा दैट इज कॉल्ड टू बी एज एन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. यहाँ पर जो करंट कैरियर है वो कौन सा होता है? दे आर आयंस. आयंस यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं करंट कैरियर्स. ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक कंडक्टेंस. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हुए जो डिसोसिएट नहीं होंगे इसमें? आयंस में, आइदर इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन. और अगर वो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे तो इसलिए इनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट उनको हम लोग बोलेंगे. दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होते हैं. एक होता है कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में. KCl, HCl, these all are strong electrolytes. Whereas weak electrolytes we have CH3, COOH, H2CO3, carbonic acid. ये सब क्या है? They are the non-weak electrolytes. Next is what is degree of dissociation or ionization? The fraction of total number of molecules of electrolyte which ionize in the solution. अल्फा से इसको हम लोग डोनेट करते हैं. जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो आयनाइज हो जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इसको. अब वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. ओके, नाउ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. ओके, the power of the electrolytes to conduct electric current is called as conductance. ओके, कितनी पावर है इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. नाउ
Ohm's law, you know that Ohm's law, I is the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. Potential difference represented by V. Current I, so I is directly proportional to V, or V is equal to IR, where R is constant of proportionality known as resistance. ओके, R क्या होता है? R होती है resistance, और इसको हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? ओम के थ्रू। यूनिट्स है रेजिस्टेंस के, और इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। नाउ नेक्स्ट बेसिक टर्म जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। इट मेनली मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है ये किसमें? फ्लो ऑफ करंट में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। L length and area of cross section. Okay, so R is equal to rho. Rho constant of proportionality, also called as specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity. Units resistance के क्या है? Ohm. Then next is resistivity. क्या होती है? Resistivity rho. Rho is equal to क्या बन जाएगा? Rho is equal to R A upon ये है R is equal to rho upon L upon A। तो जब L is equal to 1 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1/1, रो इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आ जाएगी रो के बराबर। द रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एल मतलब लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी, और जब ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो उस समय जितनी रेजिस्टेंस वहां पर आएगी दैट इज कॉल्ड टू बी एज ना रेजिस्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, बोले रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट फेसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। एक क्यूब है, उसके ऑपोजिट फेसेस के बीच में जितनी भी रेजिस्टेंस होगी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब के, दैट इज कॉल्ड टू बी एज ना रेजिस्टेंस। इसके यूनिट्स होते हैं ओम, सेंटीमीटर। Units of resistivity are ohm, centimeter. Next term is that is conductance. Conductance is the ease with which the current flows through a conductor. The ease with which the current flows through a conductor, कितनी easily वहाँ पर current flow कर रहा है, इसको हम लोग R के थ्रू, G के थ्रू represent करेंगे, and it is just reciprocal of resistance. So G is equal to 1 upon R. R के यूनिट्स होते हैं ओम, तो इसके हो जाते हैं पर ओम और महो, MHO, और सीमेंस। ठीक है, सीमेंस भी इसके यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम यहाँ पे इसके यूनिट्स हैं सीमेंस। सीमेंस इज इक्वल टू पर ओम। Okay, 1 Siemens is equal to 1 per ohm. Next definition is conductivity. The inverse of resistivity is called as conductivity, as the reverse of resistance is called as conductance. Similarly, the inverse of resistivity is called as conductivity. It is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as the area of cross section. Okay, it is the concentration of a solution, conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as the area of cross section. In other words, let us suppose this is the cube having all sides 1 centimeter. Okay, all sides 1 centimeter. It is called to be as 1 centimeter cube of a solution of electrolyte. Then the conductance of this cube, 1 centimeter cube of a solution of an electrolyte, is called as conductivity. So conductivity is represented by this word that is called as kappa. So kappa is equal to 1 upon rho, or it is equal to, the units are opposite to that of rho. Rho has ohm centimeter, this one has ohm per centimeter. Okay. Per ohm per centimeter. Per ohm means Siemens, so it will be Siemens per centimeter. Okay, in terms of meter it is Siemens per meter, Siemens per meter, and that is equal to 10 to the power minus 2 Siemens per centimeter. Now this is a table which shows the conductivity of different conductors and aqueous solutions. Okay, this is the conductivity of different materials. This is also the aqueous solutions. This is insulators. This is the conductivity of the semiconductors. Next one, another important part, that is molar conductivity or
molar conductance. Molar conductivity. What is molar conductivity? Okay, the conductivity power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution. Conductance, कंडक्टेंस हम लोग जब मेजर कर रहे हैं तो हम लोग ये डिफाइन नहीं करते कि कितने मोल्स वहां पर है। जब हम डिफाइन कर देंगे कि 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, उस समय जो आयन जो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कंडक्टिंग पावर जो उनकी होगी, दैट इज कॉल्ड टू बी एज ना मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम से हम इसको डिफाइन करेंगे, लैम्डा एम से, लैम्डा एम इज इक्वल टू काप्पा अपॉन सी। मोस्टली सी को हम लोग क्या लेके चले हैं यहाँ पे, मोलैरिटी, सो इट इज काप्पा इनटू 1000 ओवर इनटू 1000 ओवर एम। कैसे हम लोग इसको रिलेशनशिप को हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये वाला रिलेशनशिप कैसे आता है, ये मैं आप लोगों को बताता अभी। रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर conductivity. So now let us suppose we have 1 centimeter cube of a solution of an electrolyte placed between two large electrodes 1 square meter area of cross section lying 1 centimeter apart. तो अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस समय जो उसकी ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आएगी या कंडक्टेंस होगी, वो उसकी कहलाएगी कंडक्टिविटी। बट अगर हम उस 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की जगह पर अगर हम लोग क्या लेके चलते हैं, 1 ग्राम मोल, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की जगह पर अब हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर 1 ग्राम मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो जो उसकी हम लोग जो कंडक्टेंस वहां पे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। अगर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है तो वो कंडक्टिविटी, और अगर वो क्या है 1 ग्राम मोल है तो दैट इज इट्स मोलर कंडक्टेंस। ओके, तो ये कंडक्टेंस जो है इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और इट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। अब मान लो हमारे पास कितना है, हमने सॉल्यूशन को 100 सीसी तक उसको डाइल्यूट कर दिया, पानी डाल दिया हमने, वो 100 सीसी उसको डाइल्यूट कर दिया। अब क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ सॉल्यूशन है, पहले एक क्यूब था, पहले अब कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ सॉल्यूशन वहां पर बन गया। ठीक है, तो जो उसकी कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है, ये हर किसी एक कंडक्टेंस ऑफ ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी कंडक्टिविटी। तो क्या हो गया, वहां पर कितने हैं, 100 टाइम्स ऑफ इट्स कंडक्टिविटी हो जाएगी, कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 टाइम्स ऑफ इट्स कंडक्टिविटी, क्योंकि वहां पर कितने हैं, 100 क्यूब्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडक्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 100 टाइम्स ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। लेकिन उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी रही, अभी भी उसमें कितने, 1 ग्राम मोल था। पानी हम लोगों ने डाला, ठीक है, सॉल्यूशन में पानी हम लोगों ने डाला, वहां पर नंबर ऑफ क्यूब्स बढ़ गए, 100 सेंटीमीटर क्यूब्स हो गए सॉल्यूशन के, बट वो उसका जो वो था 1 ग्राम मोल ही रहा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना रहा, वो 1 ग्राम मोल रहा। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी उसकी, 100 इंटू कंडक्टिविटी, इतनी इसकी कंडक्टिविटी है इंटू 100 टाइम्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 क्या है, 100 वॉल्यूम है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन गया, काप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी और वॉल्यूम, 100 टाइम डाइल्यूट किया तो वो 100 टाइम, 1000 टाइम करेंगे तो 1000 आ जाएगा। So that's why it is lambda m equal to kappa into V। अब इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग C कंसंट्रेशन है पर लीटर में, ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितने मोल्स है, m मोल्स हम लोग लिए हैं, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, 1000 ओवर m, लैम्डा m क्या बनेगा, काप्पा इनटू वॉल्यूम, काप्पा इनटू 1000 ओवर, तो इतने वहां पर इस तरह से ये रिलेशनशिप आप लोगों का आता है, लैम्डा m इज इक्वल टू काप्पा इनटू 1000 ओवर। तो वेरी सिंपल, क्योंकि हम लोगों ने लैम्डा, वहां पर हम लोग लैम्डा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो काप्पा इनटू वॉल्यूम, ये कितना भी काप्पा होगा उसको वॉल्यूम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आप लोगों का वहां पे लैम्डा आ जाता है। इसी तरह से यूनिट्स क्या होते हैं इसके, काप्पा के यूनिट्स क्या है, कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या है, तो उसके बेसिस पे आप लोग ये निकाल सकते हैं, तो इट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अगेन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, these are the units of this one, molar conductance. Now we will discuss equivalent conductance. So it is similar to that of your molar conductance. यहाँ पर सिर्फ क्या है, लैम्डा एम, एम था वहां पे मोलर, यहाँ ई आ गया, ई का मतलब इक्विवेलेंट। यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट मास ली जाएगी, ठीक है, इक्विवेलेंट यानी कि नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी यहाँ पर हम लोग ये कंसीडर करेंगे, अदर देन मोलैरिटी वी विल कंसीडर हियर द नॉर्मेलिटी। तो उस केस में जितनी उसकी कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड टू बी एज इन इट्स
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वहां पर क्या था 1 ग्राम मोल में था, यहाँ पर क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट में है। only this is the difference, that is 1 gram mole and 1 gram equivalent. Okay, so with this you can easily calculate that one. और यहाँ पर था पर मोल, यहाँ पर क्या पर इक्विवेलेंट, यहाँ पर पर मोल आता है, यहाँ पर आता है पर इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट रेज़ टू -1, फॉर्मूला बिल्कुल सेम, वही सेम कापा इनटू 1000 ओवर सी। बट ये सी क्या है यहाँ पर, ये है नॉर्मेलिटी, वहाँ सी क्या है, वहाँ सी है मोलैरिटी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मेजरमेंट के लिए कैसे आप मेजरमेंट निकालें, आप कंडक्टेंस और ये कैसे निकालेंगे सॉल्यूशंस की, तो इसने बोला कि एक जनरल सा मेथड होता है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये जो है ठीक है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें हम लोग निकाल सकते हैं वायर्स कनेक्ट करके, सिंपली इस तरफ वायर्स कनेक्ट करके, और सबकी रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, और ये दोनों हमें नोन रेजिस्टेंस है। तो R2 अगर आप लोगों को निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या है कि जब करंट इसके थ्रू पास किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि कोई करंट वहां पे फ्लो ना करे। ठीक है, जब करंट फ्लो करेंगे इसमें से बैटरी के थ्रू जब हम करंट फ्लो करेंगे तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को कि उसमें से कोई करंट बिल्कुल वहां पर करंट फ्लो ना करे, जिसको हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के R1/R2 R3 ओवर R4, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग अननोन रेजिस्टेंस वहां से निकाल लेते हैं। सिंपल मेथड ये है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, आयनिक सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहां पर दो डिफरेंट ये हैं, पहली तो कि वहां पर हम लोग अगर डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो वहां पे पोलराइजेशन हो जाएगी, सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी। ओके, और इसमें दूसरा क्या है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक ए मेटालिक वायर। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, मेटालिक वायर यहाँ पे लगा दी थी जिसकी अननोन रेजिस्टेंस है, हम लोग वहां पर इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर भी अगर हमें करना होगा तो हम लोग मेटालिक वायर को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज कंडक्टिविटी सेल्स का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंडक्टिविटी सेल्स हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिजाइन वेसल है ये, जिससे हम लोग क्या करते हैं इजीली कैलकुलेट करते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये है कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसमें लिया हुआ है, ये आप लोगों का एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स है R, एक वायर हम लोगों ने यूज की हुई है, और एक जोकी के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पर हमारा नल पॉइंट आता है। ठीक है, AC वायर है, AD डी वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों ने एडजस्ट किया है इसको। ठीक है, जहाँ पर क्या आ रहा है, नो करंट आ रहा है, ये वो वाला पॉइंट है। ओके, ये नो रेजिस्टेंस वाला बॉक्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी चल रहा है यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो R मान लो नो रेजिस्टेंस है, और X जो है हमारी वो अनरो रेजिस्टेंस है। ये देखो X को हम लोगों ने इसके साथ अटैच किया है क्योंकि हमें इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसकी हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इसको हम लोगों ने इसके थ्रू एक कंडक्टिविटी सेल के थ्रू इसके साथ आप अटैच किया, और AC का सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर ईयरफोन का यूज करते हैं। करंट सुनने के लिए, करंट की ये सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर ईयरफोन्स का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमें वहाँ पर वो जो साउंड है उसके बेसिस पे, जब हम मिनिमम साउंड हमें वहाँ पे होगी तब हम सोच लेंगे कि वहाँ पर क्या है कि नल पॉइंट आप लोगों का आ गया। ओके, जहाँ पर मिनिमम साउंड वो करेगा वहाँ पर उसका नल पॉइंट हम लोग करेंगे, इस जॉब हम लोग यहाँ पर इसको मूव करेंगे। ओके, इस पूरे ऑपरेटर्स में फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मिनिमम साउंड आएगी उस टाइम हम लोग देखेंगे कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसको हम लोग नल पॉइंट बोलेंगे, और उस टाइम बैलेंस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये डी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आ रहा है कि मिनिमम साउंड आ रही है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ R इज इक्वल टू ओवर रेजिस्टेंस ऑफ X इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD, इसकी रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD, तो इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD इज इक्वल टू लेंथ AD लेंथ, और DC CD की लेंथ के बराबर है, तो इट इज लेंथ AD ओवर लेंथ ऑफ CD। तो रेजिस्टेंस X कैसे आ गया, तो लेंथ भी निकाल लेंगे हम CD की, लेंथ ऑफ AD निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस R निकाल लेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लगाई गई थी, उसके थ्रू फिर हम लोग क्या करेंगे, इजीली रेजिस्टेंस वहाँ पे निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस अगर हमारी आ गई तो
नो दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग वहाँ पे कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चल में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसकी हम लोग कंडक्टेंस वहाँ पे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ओवर आर इज टू ए अपॉन एल, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल, और कापा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए। इसी तरह से एक आती है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, quantity L upon A, it is called as cell constant and denoted by G star. Quantity L is called as cell constant and it is denoted by G star, और इसकी यूनिट्स हैं सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। लेट अस सपोज अगर आप दो रिएक्शंस किसी पर्टिकुलर सेल में करवाते हैं तो उसका सेल कांस्टेंट सेम रहता है, ठीक है, रिएक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी सेल में करवा रहे हैं तो उसका सेल कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेल कांस्टेंट अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है कि हम लोग कंडक्टेंस या कनेक्टिविटी वहाँ पर हम लोग इजीली कंडक्टेंस हम लोग आर के थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है, कनेक्टिविटी हम लोग अगर हमें आर पता है, सेल कांस्टेंट पता है, तो हम लोग इजीली कनेक्टिविटी वहाँ से निकाल सकते हैं। कनेक्टिविटी निकालने के और भी तरीके, मोलर कनेक्टिविटी आप ऊपर वाले मेथड से निकाल सकते हैं, फिर कापा आ गया तो आप मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये कनेक्टिविटी का मेजर करने के लिए ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस भी बता देता है, कंडक्टेंस अगर रेजिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस निकल जाएगी। सेल कांस्टेंट अगर हमें पता है, सेल कांस्टेंट मैंने बता दिया आप लोगों को, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल अपॉन, ओके, सेल कांस्टेंट अगर आप लोगों को पता है तो आप फिर अगली अगर रिएक्शन उसमें होती है तो उसको भी आप लोग इजीली वहाँ पे निकाल सकते हैं। So, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल कांस्टेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के। सेल कांस्टेंट कैसे निकालना है, इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस, इसके थ्रू आप लोग सेल कांस्टेंट वहाँ पे निकाल सकते हैं। सो ये फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने पढ़े, R is equal to rho upon L upon A, rho into L upon A, kappa is equal to 1 upon rho और G into L upon A. G means conductance, conductance is equal to 1 upon R, okay, lambda m 1000 into kappa over n, okay, lambda m molar conductivity, you know that equivalent C here considered as ना नॉर्मेलिटी, और एक और जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ओवर। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर टुडे। न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे, न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट में भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये वो वाले भी आप लोग करेंगे, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी आप लोग वहाँ से करेंगे। थैंक यू।